So, how are you, Tejas? How are you, Suresh? I'm fine, sir. Fine, sir. Okay. So, today, today we will go through an introduction session of SAP. ठीक है. SAP से के अलावा we will be discussing on पहले तो let's discuss what is your understanding level. Okay. तो let's start with Tejas. मेरे को I can see Tejas the first one, so I'll start with Tejas. Tejas, can you tell me about yourself a Sir, little my bit? name is Tejas Mahi Patil. I am from Kolhapur and I have completed my MCA in 2024 from VPMSR Sangli, and then I am completed my .NET Full Stack in Technology Tech Merchant Road, Pune, and right now I'm looking for a job. Okay. And how did you know about SAP? How did you join us? I mean, who suggested you for SAP? Uh, uh, Manjushri ma'am, sir. Sorry, We your are voice is a little low. Manjushri ma'am, Manjushri Okay. Havaldar. No, no. Anna, did you know anything about SAP before? No, no, sir. What SAP is, how it works? No, No. sir. Okay. So you're completely new to this ABAP language, right? Yes, sir. Okay. Shreyash? Okay. My name is Shreyas Rajaba. I am from Sangli. I have completed my MC in 2024 and recently completed my data analytics course at Seed Infotech Pune. Mm-hmm. I'm currently uh, looking at the SFE course. Okay. And what about you? How did you know about SAP? Manju sir, ma'am. Okay, so both of you are completely new to this Yes. SAP. Okay. And what all programming background you have? Tejas, you told you have .NET, right? Yes, sir. Okay. Just a second. Uh, I think this session is already recording, Sujata. Okay, okay, sir. Thank you. Yeah, because I can see the record is going. Record is going. Yeah, yeah, okay, okay. Yeah. So, Tejas and Suresh, sorry, I was there. Tejas, you know .NET, right? And Suresh, I took the have team also completed MCA and recently completed my data analytics course. data analytics course. So Uh, language, any uh, other programming language that you know other than apart from SAP or something. For the data analyst, क्या use किया था? SQL, basic Python, Power Python use BI. Uh, Power BI. Okay. Yeah, because it will be good if you know one programming language, तो ये थोड़ा easy हो जाता है that I can relate to your older experience, and then that will be more helpful to you, right? Yes. uh Look, सबसे पहले let me tell you something regarding SAP SAP otherwise also the learning technique how we are going through. Okay. First thing first, don't use any sort of AI for now, like Chat GPT or something like that. And I'm telling you for a reason. Okay. Have you used tools like Chat Yes. GPT or anything like that? You have used, Yes. right? You know what is the correct way of using it? Can you tell me No, what sir. is the correct way of using it? No, sir, we don't know. You don't know. See, uh,
tools like AI tools now, these are very specific, I mean, domain specific, tool. Okay. It's based on a massive data, and the response from the AI tool will only be good if you know the details of what questions you are asking and what answer it is giving. Okay. तो फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग, कहीं सुना होगा ऐसा ना कि एआई टूल विल हेल्प यू टू लर्न इजीली, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू आर हियर टू लर्न इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. ठीक है. तो पहले get to know all the tools, all the things that are in SAP in a structured way. Then I will also take you through some AI helpful languages. ठीक है. जैसे SAP के अंदर अपना जूल है, बट वी विल बी यूजिंग सम अदर लैंग्वेज, बट आई विल टेल यू हाउ टू यूज सच थिंग्स विथ योर ये में, so that you are updated आज के डेट में. So I'm not saying that ruling out that AI is not helpful. You can use it, but mind you that with the limited knowledge that you have right now, it will give you wrong answers. It may give you wrong answers. You will not understand कि वो गलत आंसर दिया है, and you will learn the wrong things. ठीक है. In my previous experiences, students have done this mistake. ठीक है. Take help. Of course, I'm not ruling out. But my advice would be, whatever topic we are covering, focus on that topic, learn everything about that topic. You want to research more on that topic, you can. You want to ask me questions on that, you can, but stick to the structure that we are going through. That's the first thing. Okay. And next thing is, be more hands on. ठीक है. Theory part will be only relevant up to your interviews, but mind it, if you have a hands on, then it will be easy for you to carry out. Okay. So I'll be giving you code snippets. I will giving you a server. Practice more. ठीक है. There will be snippets. शुरू में तो my recommendation would be, forget the server. You may have the snippet for now, but don't refer to the snippet. Understand it first. Try to write down in your copy so that you have it in your muscle memory. Okay. Your answer has to be on your fingertips. My goal right now is to land you in a job, and let me give you a very straight forward view right now. Okay. The market is very competitive. Okay. I'm not, I'm not discouraging you, not saying that, okay, nothing is, matlab this, it's impossible or something like that. Of course, there are a lot of jobs, but very high competition. There are a lot of people who are going to. Okay. So I want to equip, this equipment is important because everything has to be on your fingertips. Okay. Your core ABAP, first thing as you're going on the job, your core ABAP has to be very strong. Okay. And the first point of interview tip for your level is, don't include anything about AI until you are asked from the interviewer. ठीक है. Reason is, the truth is, industries, India, in way people in working in India are right now is AI not integrated right now. There will be a lot of places, but first thing first, they expect that your basics are very clear. ठीक है. अभी तुम एआई जाके पहले ही बोल दोगे तो उनको लगेगा कि तुमको जितना ज्ञान नहीं है, उससे ज्यादा तुम एआई यूज करने पे डिपेंडेंट हो. ये तुमको नहीं दिखाना है. Understand, until somebody asks you, okay, you know anything about AI? Then you can tell, yeah, we have used, but focus on your fundamentals. Okay. So ये दो important tip है to start off. I will provide you the server, but initially try to practice on it, catch up with all the topics. Whatever I'm teaching you, it's very important point of view.
ठीक है. तो just a second, let me see. I'm sharing my screen. So let me tell you about myself. My name is Ankit Kumar, and I have 15 plus years of experience with as an SAP senior SAP consultant. Okay, I worked with at least 5 companies till now, and I have been into consulting mostly, but I have also been a corporate trainer. ठीक है. So most of the technique that I'll be using here will be, how corporates get into job. Okay. So one thing also I want to highlight that we are not just learning ABAP. Okay. We have to learn ABAP in a way that where we are using it, how we are using it, why we are using it. Okay. There will be other aspects which is associated to ABAP. The ABAP is a programming language. It's also a reporting tool, but reporting of what? Business, right? No need to write anything. Focus on the practical part. Read about it after the class. Okay. And try to come up with questions. If you come up with questions, well and good. If you don't, then I will come up with questions. Okay. And try to make it more interactive. Okay. I want conversation exchange. I want you to speak as well voluntarily. Okay. So that I understand how much you are learning. Okay. These are some of the theories that I'll give you. You read about it. Okay. And then I will start covering from tomorrow. Today I'll just give you a short short way of how we are going to go into SAP structure. Okay. Wait. Okay. See, basically, SAP is an ERP. Okay. Any idea what ERP is? Ever heard of it? Ever heard of a ERP? Yes, sir. What is your idea about ERP? Can you tell me? It is an software. It is in one software where we can manage all the business plans, one company business plan in one system. Okay. Any ERP, other ERP have you ever heard of? Any one in your idea? Means, sir, just like SAP ABAP, Mm-hmm. Any other uh, ERP you have heard of? NetSuite, Sorry? NetSuite. It's an Oracle-based language which is used in an ERP.
Okay. Have you any word heard about Tally? Yes, sir. Yes. Just heard, not anything information about the Tally. Yeah, and that's okay. Just wanted to know that you have any background, any idea about what ERP is, because see, company has lot of departments, right? And these departments are interlinked with some data. However, most of the departments are not allowed to see all the data of every department, right? So there's a sort of integrity and there's a sort of security, right? So when your database is at one place and all your data is in one place, you need some sort of abstraction and you need some sort of layer, right? You need some sort of layer that gives you the audit report, okay, and some sort of layer that keeps the department separate. Okay, so this is where the software like SAP comes in. Okay, SAP basically helps you uh, manage that data in one place. It provides audit about who is using the data, how they're using, right? तो SAP का ये काम होता है कि इस सबको एक जगह में एज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सके. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. देखो, SAP has evolved almost 45 year old software. Okay, it was started by one of the 10 12 10 15 people from the IBM who developed a solution for some client, and then they decided to take it forward and they made it a software like whatever today is. This is actually an evolution, full-fledged evolution of lots of years of integration of systems like inventory system, right? In 70s they came up with material management. What are these? I'll let you know. We'll come. I'll teach you about all those things. There will be a business process. ठीक है, अभी तुरंत से नहीं बताते हैं, अभी थोड़ा सा इसको रीड कर लो. ये रीड कर लोगे तो फिर उसको हम एक के बाद एक लेकर के जाएंगे. ठीक है, so read about this history of ERP, go through it. You should know what the history of that software is, right? Or read some of the things which I have gathered. ठीक है, so these are some things that are mostly related to basis, but there are common things that you should know. How dispatcher works, इसको एक बार पढ़ो, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, और let me give you a quick example of how SAP works. Okay, you will get a server like this. ठीक है, इसमें you will have a username and you have a password. ठीक है, so what is this interface like? ठीक है, see, this is your complete screen where your forms will be available. When you launch, these are your menus. What you see here is, these are calling commands. ठीक है, so अभी ठीक है. If you're not able to understand, we'll go into deep depth. I'm just giving you an introduction about what it looks like, how we'll go about it. ठीक है, yes Tejas, tell me. सर आप कौन सी स्क्रीन शेयर कर रहे हो? वो अबैप टॉपिक का अबैप टॉपिक विल बी कवर ये स्क्रीन, अच्छा, टॉपिक ही मतलब दिख रहा है क्या? पीपीटी। एक हाँ। सेकेंड, अभी दिख रहा है? नहीं No, सर। sir.
टेल मी जैसे आता है। हाँ, अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। गुड गुड। थैंक यू तेजस। ये अभी ये जो है ना, मैंने क्या किया, मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे, जस्ट बंद करके फिर से स्टार्ट करते। सी, you have an SAP log on like this. ठीक है, you double click on this. This is GUI, this is the GUI part. Okay, you double click on your, इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। हम कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। दिस इज योर एप्लीकेशन सर्वर GUI which is going to connect with some backend server. ओके, तो ये एप्लीकेशन सर्वर का तुम्हारा नाम दिया हुआ होगा मोस्ट प्रोबब्ली। समटाइम्स यू विल फाइंड, समटाइम्स यू विल फाइंड सम IP एड्रेस। ये लोकल सर्वर पे ही होगा तो प्रॉब्ली यू डोंट हैव द IP एड्रेस, इसने डायरेक्टली कॉल सिस्टम से कॉल, सिस्टम नेम से कॉल किया। सो दीज आर ऑल बेसिस थिंग्स। SAP के अंदर एक बेसिस होता है, दे हैंडल ऑल दीज थिंग्स, बट व्हेन यू आर लॉगिंग इन, तो ये सर्वर नेम, इंस्टेंस नंबर और सिस्टम ID इंपॉर्टेंट होता है। ओके, you make this connection, you double click on it, you can make more connections like this. You will have a username and you will have a password. Okay, ठीक है। So when you log in, you will land up in this page. यहाँ पे एक मेनू तुमको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, है ना? एक मेनू यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये SAP मेनू है, ये सिस्टम मेनू है, एंड दिस इज योर फेवरेट साइट जहाँ पे कॉलिंग कमांड्स है। इन SAP टर्म्स वी कॉल इट ट्रांजैक्शंस। ओके, so basically, you will there will be screens that you will be calling, और उस स्क्रीन को कॉल करने के लिए जो तुम कमांड यूज करते हो, इन SAP terms we call it transactions. So first transaction that you're going to learn today is SE38, and this is where your SAP ABAP editor comes in. ठीक है ना? SAP ABAP editor जो है, इसको रन करने के लिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव इज द प्रोग्राम नेम। ओके, नाउ देखो, यहाँ जितना भी प्रोग्राम तुमको दिख रहा है ना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑल दीज आर SAP गिवन प्रोग्राम्स। ओके, सो SAP के अंदर देयर आर टू थिंग्स। वन द SAP पैकेज दैट हैज प्रोवाइडेड यू, and number two, the things that the programs that you create will either start with Z or it will start with Y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ अंकित प्रोग्राम समथिंग लाइक दिस, ट्राई टू क्रिएट इट, देखो, ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन SAP पैकेज। ओके, तो ये दिस विल गो टू SAP पैकेज। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, हम इसका और भी ये से समझाएंगे, बस मतलब पहले देखो हाउ इट इज वर्किंग। के ये सब चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर टुडे इज SE38। कोई चीजें नोट करने के लिए? जस्ट कीप अ नोट पैड, जो बोलूंगा वो नोट करना। यू रीड अबाउट इट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज राइट डाउन द ट्रांजैक्शन SE38। ठीक है, SE38 इज इन ABAP एडिटर। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन राइट डाउन व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड। आंसर नहीं देना, बाद में इसको इसके बारे में पढ़ना क्या होता है एसएपी के अंदर। ठीक है। एंड थर्ड थिंग, नोट डाउन दैट ऑल योर ऑब्जेक्ट्स दैट यू आर क्रिएटिंग will start with either Z or Y. That and Z and Y is actually customer namespace. सर रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला अभी? Yes, What? yes, 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 yes. मैं यहाँ पे लिखता हूँ again. Will be easy for you to take. Wait. क्या क्या नोट कर लिया वैसे अभी तक? अरे यार इसका जाए। SE38 an ABAP editor, and what is an The SC38 is a BAP editor. Okay. Next I asked, what is transaction code? Okay. You read about it. Third thing is, okay, so these two are what I've seen. And the third thing is, all your object name should start with either Z or Y. Okay, this is what is called customer name space. ठीक है, note down these three things. ठीक है। It's already open. ठीक है, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एक बार। Once you click, you have to give a title to this here. ठीक है, these are some of the things that SAP collects for everything. पहला तो I'll just give you a first. क्या कर रहे हैं? Sorry about typos. मेरा keyboard is a little glitch. First program. ठीक है, then there are some type of programs. Okay, now we will discuss all these programs. We will go through one by one as per the structure. Okay, but still I want you to read about what is this. Can you take a screenshot of this drop down?
and I want you to read about all these things which are there. Behavior definition, query, all these program types. I want you to read. You कैसे include program, module, function group, ये सब आएगा तुम्हारा. These are all the part of your one by one topic. Okay. But एक knowledge लो, कितना knowledge ले सकते हो. Take a screenshot of this. Taken. This box is important. ले लिया. ठीक है. Yes, For sir. now, initially we are going by executable program. ठीक है. Save. ठीक है. Now I want you to take the screenshot of this as well. Package. ठीक है. ये ले लो. The transaction code for package is SE21, but उसमें अभी जाने का जरूरत नहीं है. But what happens is, see, it's a very big, SAP is a very big program. It's a program library, right? Like I said. So, you need some sort of container that holds all your programs, all your objects, right? All these things that we are creating here in ABAP editor, or in fact all the objects that you will be creating, okay, they're all objects. तो हम लोग जब एसएपी के अंदर कोई चीज डिलीवर करते हैं एज एन एबैप, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हैं. कितना टाइप का ऑब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तुम्हारा प्रोग्राम रिपोर्ट हो सकता है. ठीक है. तुम्हारा ट्रांजैक्शन कोड हो सकता है. राइट. तुम्हारा स्क्रीन हो सकता है. तो जो कुछ भी तुम इनफैक्ट डेवलप करोगे, दे विल ऑल बी एन ऑब्जेक्ट, एंड ऑल योर ऑब्जेक्ट्स विल स्टे इनसाइड अ पैकेज. ठीक है. तो सब कुछ एक पैकेज के अंदर तुमको डालना है. ठीक है. लेट मी सी इफ एनी पैकेज इज ऑलरेडी अवेलेबल. हम अपने Z प्रोग्राम को भी Z पैकेज के अंदर डालेंगे. है. यूज कर लेते हैं. जब तुमको दूंगा सर्वर, to try to create your own package and then save everything in there. ठीक है. ठीक. देखो, now once you have taken your package, this is where your editor comes in. ठीक है. इसके लिए अभी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं. एक second. हम्म, पेन ले लेते हैं. ठीक है. देखो, दिस मोर लाइक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बेसिकली. ठीक है.
अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मैंने क्या किया, व्हेन आई रोट आई एम गोइंग एंड एक्टिवेटिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है। Going this activating this program is why, because see what happens in SAP editor is you always have two copies in your server. Okay, one copy is the current copy that you are editing, ठीक है, and one copy is the activated copy. Now अगर मैं जाकर के इसमें if I write anything, if I have to add a comment or something like that, uh, this is a comment. ठीक है, एंड आई सेव इट, ये देखो इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम इसको इसको अगर हम अभी भी दूसरे स्क्रीन पे ओपन करें, यार एक सेकंड, इफ आई गो एंड ओपन दिस इन अनदर, देखो वहां पे ऑलरेडी इट इज ओपन, राइट, आई कैनॉट गो इन चेंज। अच्छा यहाँ पे हो रहा है क्या, ओके, बिकॉज आई एम इन द सेम सर्वर तो ये होगा। अभी तुमको इनएक्टिव कॉपी ही दिखेगा, इसको एडिट करने नहीं देगा, देगा क्या, नहीं देगा। सी, आई एम ट्राइंग टू एडिट इट, इट्स नॉट गिविंग मी द एडिट वर्जन। ओके, इनफैक्ट किसी और सर्वर से ओपन करोगे तो ये शायद तुमको दिस कमेंट जो मैंने बाद में चेंज किया वो दिखेगा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव द एक्टिव कॉपी ऑफ इट। अनलेस एंड अनटिल तुम इसको एक्टिवेट करोगे इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द एग्जीक्यूशन साइड, ठीक है। सो राइट नाउ इट इज सेव्ड एज अ ड्राफ्ट इन योर सिस्टम unless and until you activate it. Once you activate it, the executable program is overwritten by your latest copy, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर वो ऑल ऑब्जेक्ट स्टेज इन पैकेज बोला ना, वो कुछ समझ में नहीं आया। आपने जेड ऑब्जेक्ट को कुछ तो पैकेज में डाला ना। देखो पैकेज इज लाइक अ फोल्डर, तो तुम अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के रखते हो, राइट। कुछ भी क्रिएट करते हो तो एक फोल्डर के अंदर डाल के रखते हो, राइट, है ना। तो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली, जहाँ पे यू कीप योर ऑल योर ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या होता है कि फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग उसका एक पैकेज क्रिएट होता है, ठीक है। उस पैकेज के अंदर में हम सारा ऑब्जेक्ट को मेंटेन करते हैं, ताकि बाद में जब हम ढूंढे तो उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर या फोल्डर के अंदर ये करते हैं। नाउ रिलेटेड टू हाउ यू मैनेज इट इन योर लैपटॉप और इन योर सिस्टम, दैट मतलब फोन पे या कहीं पे भी, you just don't go around scattering your program, so you organize it in your folder, ठीक है। when you बाद में जब जरूरत पड़ता है you go and search in that folder, right। so SAP basically gives you, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम का सिस्टम है, it's a mandatory that you have to manage it inside a package, सर ठीक है ना। ओके ओके सर। और कोई भी पॉइंट जो अभी तक कवर किया उसमें नहीं समझ में आया, देखो अभी आई एम रनिंग थ्रू, ठीक है। दिस इज लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अभी इसमें और भी डिटेल्स में, अभी जैसे ये लिखा है तो हम इंट्रोडक्शन, अभी क्या कहते हैं, डेटा टाइप क्या क्या टाइप का होता है, आउटपुट कैसे कैसे करते हैं, ये सब इन डिटेल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, इट्स लाइक अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, सो दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग अंडर द हुड एंड यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो अभी सब डिटेल में आएगा, राइट, बट you get the idea of how it is working, okay। तो क्या होता है, ये पहला लाइन जो लिखा हुआ है रिपोर्ट, तो बेसिकली क्या है कि व्हेन यू आर रनिंग अ प्रोग्राम इट विल एक्चुअली इंक्लूड ऑल द टूल्स। तो तुम लोग जो पाइथन यूज किए होगे या डॉट नेट यूज किए होगे,
तो लाइब्रेरी यूज किए होगे, कुछ तो एसोसिएटेड लाइब्रेरी यूज किए होगे, राइट? तो ये बेसिकली इट इट एक्चुअली गिव्स द प्रोग्राम द नेसेसरी थिंग्स टू एग्जीक्यूट। अगर मैं सिमिलरली एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूं, क्रिएट किया, ठीक है, टेस्ट इंक्लूड किया, टाइप लेते हैं इंक्लूड, और यहाँ पे डाल देते हैं। देखो यहाँ नहीं आया वो चीज, राइट? हम यहाँ पे क्रिएट किए थे, ये ऑटोमेटिकली आ गया था, बिकॉज दिस इज एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, दिस इज नॉट, ठीक है, इट्स ए मॉड्यूलर प्रोग्राम, राइट? सो ये सब जितने भी टाइप्स है ना, दे आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। यू रीड अबाउट इट एंड we'll go through it, और ताकि when we will go through it you will have a basic idea, then you can ask me questions अगर कोई डाउट नहीं हुआ तो, राइट? तो रीड अबाउट इट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, आई एम टेलिंग, ये एक मैंने, आई एम टेकिंग इट एज अ वेरिएबल। ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है, ठीक है। यू स्टार्ट विद डेटा, इट विल क्रिएट अ कंटेनर, ठीक है। आई एम गिविंग इट अ नेम आई एंड गिविंग इट अ लेंथ। हर का जरूरत नहीं पड़ता, हर किसी में जरूरत नहीं पड़ता, किसी किसी में जरूरत पड़ता है, वो तुमको भी आगे पता चलेगा जब हम डेटा वेरिएबल टाइप्स करेंगे। सो बेसिकली अगर हम, इफ आई डोंट गिव इट अ लेंथ ऑफ दिस, इट विल बी अ 1 कैरेक्टर लेंथ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर डिफाइन किया टाइप में, ये आई हैव गिवन द लेंथ, ठीक है, आई हैव गिवन इट डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, एंड आई एम प्रिंटिंग इट आउट। सो इफ आई ये इफ आई रन दिस प्रोग्राम, इट विल गिव मी अ वेब, ठीक है। अभी लाइक आई सेड, if I remove this, even if the abap is there, it will only print A. Why? Because the length is now only 1, right? So, so basically what is happening here is, अच्छा, now as a beginner, मतलब ये as a initial learner, एक चीज याद रखना, debugging is very important। तुम्हारा इंटरव्यूअर मोस्टली डिबगिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, और इनफैक्ट डीबगिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। प्रोग्राम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी तुमको दूंगा, जो भी तुम लिखोगे इनिशियली, ट्राई टू डीबग द प्रोग्राम। तुम्हारा जितना कंसेप्ट क्लियर होगा ना, जितना इन डेप्थ जाओगे, वो सब तुम्हारा डीबगर के हेल्प से हो जाएगा। देर आर फ्यू वेज ऑफ गोइंग इनटू डीबगर। एक तरीका यह है कि यू यूज /h, ठीक है। you use you do give the command /h, your debugging is on. Now at this step, whatever I'm going to do, it will go into debugger। अभी तो लिखा ही नहीं था, कहां से आया बताओ, कहां से आया? ये लिखा ही नहीं था ना, तो कहां से आया? प्रोग्राम डीबग होने से। नहीं, ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे,
राइट, दिस इज टू, ये प्रोग्राम को लोड किया, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, राइट। तो यहां से स्टार्ट हुआ वो, करेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम स्लैश एच, द अदर वे इज डबल क्लिक ऑन दिस लाइन, सॉरी सॉरी, ये एग्जीक्यूटेबल लाइन पे जाता है, डबल क्लिक ऑन दिस लाइन, तो ये सेशन ब्रेक पॉइंट लग गया तुम्हारा, ठीक है। नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट, इट विल डायरेक्टली कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे डिबगर लग गया था, so directly come to this point, right? If you double click on what this is, ये देखो तुम्हारा वेरिएबल का डिटेल बता दिया, करेक्ट, ठीक है ना। इसमें ऑल भी स्क्रीन है, टाइप आई, इसका टेक्निकल टाइप तुम्हारा C10 यहाँ पे दे रखा है, लेंथ दिया हुआ है, करेक्ट। सो ये डिबगर के अंदर में यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वॉट एवर विच स्टेप यू आर इन, वॉट वेरिएबल यू आर यूजिंग, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोग्राम दूं, तो पहले तो समझो प्रोग्राम को, उसको अपने बिना रेफर किए पहले उसको कोशिश करो लिखने का, उसके बाद उसको प्रोग्राम सिस्टम के अंदर लिखने के बाद उसको डिबग करो, उसमें चेंजेस करो, क्या क्या एरर आ रहा है उसको सॉर्ट आउट करो। ये तुम्हारा हर प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये चीज नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो ऑल योर एफर्ट ऑफ डूइंग दिस विल गो वेस्ट, ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर बेसिक प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है। जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं ना, तो एक मॉड्यूलर क्या होता है कि एक ही टॉप डाउन प्रोग्राम बहुत ही जब बड़ा होने लगता है, तो वी स्टार्ट टू मॉड्यूलराइज इट, ठीक है। तो उसके लिए ये जो दूसरा प्रोग्राम लिखा था, इंक्लूड प्रोग्राम, वो यूज करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम टाइप, ठीक है। तो ये जो मैंने तुमको दिया है वो वाला जो स्क्रीनशॉट दिया है, ये उसमें आएगा, वो पढ़ो, देन आई गिव यू द प्रोग्राम एंड आई शो यू हाउ हाउ वी आर यूजिंग इट, ठीक है। नाउ अभी थोड़ा सा हम एसएपी से ये करके मैं तुमसे और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। Obviously being you might have seen object oriented programming in other, ये also python में भी सुना ही होगा, .NET पे भी सुना ही होगा। Can you tell यस me सर। what is the basics of object oriented programming? What are the principles of object oriented programming? है तो गूगल कर लो, याद आ जाएगा, गूगल कर लो, गूगल कर लो, याद आ जाएगा। बट अपना अंडरस्टैंडिंग मेरे को दोनों अलग अलग बताओ, क्या समझे, क्या नहीं समझे। यूज किए होगे, क्लासेस यूज किए होगे, राइट। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ट्राई टू आंसर दैट। फ्रेंड्स क्लास यूज किया कभी, नो फ्रेंड्स क्लास, सर। फ्रेंड्स क्लास यूज नहीं किया कभी, नहीं। ओके। खैर एनीवेज, जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन अभी स्टिल रिमेन, क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। Modeling the software around the real world object.
नहीं, मैंने तुमको बोला गूगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को अंडरस्टैंड समझाओ, आई मीन उसमें क्या होता क्या है। एनकैप्सुलेशन सुना है? यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म सुना है? यस। यस सर। क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन में सर डेटा और मेथड्स एक साथ रखते हैं, लाइक है जो उसका एक्सेस लिमिटेड रहता है उसका। गूगल कर लो, आई एम सेइंग गूगल कर लो, दैट्स ओके टू रीड ये पे, डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग एंड डूइंग, ये पे गूगल कर लो, दैट्स ओके, आई एम फाइन विद दैट, बट अंडरस्टैंडिंग बताओ, क्योंकि आई वांट टू, ये सब इंपॉर्टेंट है, I mean, हर हर एस्पेक्ट, टॉप डाउन हो चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, टेक्निक वही रहता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बिकॉज इट्स अ कॉमन प्रिंसिपल फॉर एवरी लैंग्वेज, right? There are four important things: encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. ठीक है? इनकैप्सुलेशन में सर ये डाटा और वेरिएबल्स, लाइक एज वेरिएबल्स और जो फंक्शंस होते हैं वो एक ही हम्म। क्लास क्लास में होते हैं। और जो लाइक जो सीधा एक्सेस करते हैं बाहर से उसको रोका जाता है। क्या होता है वो? लाइक एज पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सुने हो? हाँ। कैसे एक्सेस करता है? एक्सेस मॉडिफायर जानते हो? यस सर। क्या होता है? सर एनकैप्सुलेशन में वो एनकैप्सुलेशन में डेटा के अराउंड वो रैप करता है वो, और उसको उसका एक्सेस वो हैंडल करता है विद यूजिंग ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। सो इट कैन बी यूज्ड इन लिमिटेड, मतलब लिमिटेड लोगों के लिए यूज करता है एक्सेस मॉडिफायर के यूज से। ठीक है, अभी आपका एक और टास्क इसमें ये है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स को अच्छे से समझो, पूरा प्रिंसिपल समझो। आप अभी समझ रहे हो ना मैंने आपको एआई यूज करने क्यों मना किया था? यस। यस अभी सर। गूगल में ही कंफ्यूज हो गए आप, यस सर। राइट? एआई पे जाओगे तो वो ऐसा आंसर दे देगा जो आपको समझ में भी नहीं, राइट? इसीलिए जो क्वेश्चंस बोल रहे हूँ उसमें फोकस करना, जो चीज मैं पढ़ने बोल रहा हूँ उसको पढ़ो पहले, ठीक है? ये ओके बहुत सर। बेसिक ओके सर। चीज है। आप कॉलेज में हो, कॉलेज से एमसीए कर रहे हो, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट आप इस चीज पे ग्रिप डालो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अबैप, इट्स इट्स सेम अक्रॉस एवरी लैंग्वेज, बिकॉज इट्स अ प्रिंसिपल, राइट? यस ओके। सर। ठीक है, तो इसको एक बार ब्रश अप करो, यहाँ पे काम आएगा आगे बहुत चीज में। अभी हम कोर अबैप शुरू कर रहे हैं, लेकिन एडवांस में मोस्टली सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, ओके सर। ठीक है? तो आई एम सेटिंग, दिस इज सेटिंग द बेस ऑफ योर फ्यूचर लर्निंग राइट नाउ। ये नहीं हुआ तो नहीं समझ पाओगे, ओके। ठीक है? ओके। ओके, गुड। Just a second. I'm just stopping sharing my screen. I'll just I'm just going into some other. Hmm.
हम्म। Do you have access to your chats? Zoom chats, na sir? Mm-hmm. Yes, yes, sir. Again, just a second. Let me see if I can paste. Can you go into this link and check that you can see this or not? लिंक मिला क्या? नहीं सर, नहीं आया नहीं सर। कुछ। नहीं आई है. I just pasted it where? Okay, sorry. Pasted in the wrong window. Meeting. मिल गया सर। इस पे जाना. Can you see the content? Yes, sir. You can read. Code samples, questions, image, language. इंट्रोडक्शन। दिख रहा है, राइट? Yes. सी इसमें जितना भी कंटेंट था ना उसका, इट्स ऑलरेडी देयर. पीआरपी आर्किटेक्चर दिख रहा है. दिख यस रहा। सर, ईयर पे आर्किटेक्चर डेटा ओके। I need to share my screen. Just hold on. ये दिख रहा है ना? हाँ. So you can see जितना भी डिटेल्स है, इट्स ऑल देयर. अब आपके बारे में द रीडिंग स्टफ. ठीक है. इसके अंदर में नाउ दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप. अभी अभी वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, राइट? अभी बोला था ना ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स जो हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो डिलीवरेबल्स टर्म्स में इसको हम लोग जब आपस में कंपनी में जिसको डिलीवर करने जाते हैं कस्टमर को, तो उसका हमारे पास एक वर्ड है, उसको बोलते हैं राइसअप. एंड देयर आर हाई चांसेस दे मे आस्क यू कि इफ यू हैव एनी आइडिया व्हाट राइसएफ इज. तो राइसएफ डब्ल्यू, बेसिकली राइसएफ बोलते हैं, RICEF डब्ल्यू, बेसिकली इसको याद रखने के लिए बोलते हैं. R is for report, I is for interface, C is for conversion, E is for enhancement, F is for form, W is for workflow. आप लोगों को कोड स्ट्रक्चर दिए गए, प्रोवाइड किया गया है. तो उसमें आपको दिखा कहीं कुछ ऐसा ऐसा चीज लिखा हुआ कि उसमें हम कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, सिलेबस नहीं मिला सर अभी। सिलेबस नहीं मिला है, ठीक है, मिलेगा, उसको जाना. ये कोड, ये जो लिंक भेजा है, इस लिंक पे जो जो चीज लिखा है इसको एक बार पढ़ो. ठीक है. हम ये सब कवर करेंगे. अब आप रिपोर्ट इंटरफेसेस देखो, इसमें से बहुत सारा चीज जैसे BI BX ये सब बाहर का है. ये दीज आर सेपरेट थिंग्स. ये BI रिपोर्ट हमारे काम का नहीं है. इट्स अ सेपरेट मॉड्यूल बेसिकली. बट अब आप रिपोर्टिंग हम करेंगे. ठीक है. RFC, IDOC,
बापी ये हम यूज करेंगे। ये नीचे का 3 अलग चीज है, अलग मॉड्यूल है। कन्वर्शन में बीडीसी, बापी, ठीक है, आईडॉक, एएल। LSMW इज नॉट फॉर यू, इट्स बेसिकली फॉर फंक्शनल्स, ठीक है। एनहांसमेंट आपका ये हम करेंगे, ये सारा का सारा। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड SAP को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स, स्मार्ट फॉर्म्स, अडोब फॉर्म, ये दोनों जरूरी है। नीचे वाला थोड़ा आउटडेट हो चुका है, हम लोग BTP में जाएंगे इनफैक्ट उस सेक्शन, ठीक है। एंड SAP वर्कफ्लो। SAP वर्कफ्लो एक हाई लेवल आइडिया दूंगा। इट्स नॉट रिलेटेड टू वर्कफ्लो, इट्स अ सेपरेट मॉड्यूल, बट यस आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। वो somehow there are objects which are very related to ABAP only। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ो। टी कोड सभी बताया आप लोगों को क्या होता है। सर क्या बोला आपने? ई कोड्स? टी कोड्स, ट्रांजैक्शन कोड्स को शॉर्ट फॉर्म में टी कोड बोलते हैं, ठीक है। ये कॉलिंग कमांड जितने भी है, ये ट्रांजैक्शन कोड, इसको हम लोग टी कोड्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सम टी ABAP रिलेटेड टी कोड्स विच आर ऑलरेडी देयर। इसमें से हम अभी थोड़ी देर पहले कहाँ गए थे, SE38 के अंदर गए थे, राइट। यस सर, यस सर। नेक्स्ट आवर चैप्टर विल स्टार्ट विद डेटा डिक्शनरी, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज ये प्ले करता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट यू विल बी क्रिएटिंग, दे विल ऑल बी द पार्ट ऑफ डेटा डिक्शनरी, ठीक है। तो जब आप अभी फर्स्ट लेवल इंटरव्यू पे बैठोगे, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका डेटा डिक्शनरी का सारा आंसर आप करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। अगर अगर आप सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, जब आप सर्टिफिकेशन के लिए भी जाओगे अब के लिए, तो जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है, वो है डेटा डिक्शनरी। दिस इज द होल बेस ऑफ अबैप, कोर अबैप, ठीक है। तो आपका इसके अंदर क्या क्या चीज आता है, टेबल्स आता है, डेटा एलिमेंट आता है। क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। डेटा एलिमेंट एंड डोमेन आपके साथ साथ ही साथ काम करता है इसमें। व्यूज, आपने टेबल्स बनाया होगा SQL में या किसी भी एक डेटाबेस में, जानते हो व्यूज क्या क्या होता है, क्या होता है व्यूज। फिजिकल डेटा, फिजिकल टेबल के ऊपर आप क्रिएट करते हो, ये फिजिकल टेबल नहीं होता है, एक इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो व्यूज, इसमें क्या क्या टाइप्स होता है वो हम बताएंगे, लेकिन व्यूज का बेसिक्स तुमको पता होना चाहिए। दिस इज नॉट अ फिजिकल टेबल। आप टेबल को ज्वाइन करते हो, दो अलग दो फिजिकल टेबल को ज्वाइन करके एक सिंगल व्यू बनाते हो, जो बेसिकली खाली उसका इंडेक्स होल्ड करता है, ना कि पूरा का पूरा टेबल। कॉलम होल्ड करता है, ना कि पूरा का पूरा टेबल, राइट। तो ये सारा का सारा पार्ट है, ये सब डेटा डिक्शनरी के अंदर आता है, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, जो मैंने आपको बोला कि आप इसको SAP के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो। सबसे पहले तो बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से इसको पढ़ो, ठीक है। आई थिंक कल के लिए वी हैव अ क्लास टुमारो, राइट। Yes, sir, based on your availability and students' availability. हम्म। तो so this is your these are your homework for the next class,
ठीक है, we'll go into that. Next, there are some code samples. ठीक है, ये रखा यहाँ पे वैसे मैंने रेफरेंस के लिए है, बट आपको अभी क्लियर कुछ भी नहीं होगा। वो मैं आपको जैसे जैसे बताते जाऊंगा, आप उसके हिसाब से उठाते जाना। बट मतलब वही, लाइक आई सेड, क्रिएट योर ओन रिपोजिटरी लाइक दिस। अभी के लिए आप लोग अपना गिटहब का एक ऐसे एक ये बना लो, कीप ऑल योर स्निपेट्स लाइक दिस। मेरे सारे स्निपेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मैं यहाँ से ही रेफर करके आपको स्निपेट्स दूंगा। यू कैन कम बैक एंड रेफर टू दिस वन एज वेल। तो फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, द स्निपेट इज हेयर, राइट। तो अभी ऐसा नहीं है कि आपको हाथ में स्निपेट दे दूं तो आप एकदम से मतलब ये हो जाओ कि मेरा काम खत्म है। ओके, ये सिर्फ इसीलिए है कि आप कहीं भटको नहीं, इधर उधर मत जाओ। आपको स्निपेट एक जगह मिलेगा, बट इट्स योर, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आप ही कर सकते हो। प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, राइट। एक सेकेंड, आई जस्ट टेक वन प्रोग्राम हियर। एक डेमो प्रोग्राम लेते हैं। ओके, ज्वाइन ही ले लेते हैं। जब मैं यहाँ पे, मैं एक स्निपेट आपको करके जस्ट डेमो के लिए रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक इनिशियल स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर इनपुट स्क्रीन बना रहे हैं। ठीक है, एक क्वेरी है, और ये क्वेरी ने बेसिकली ज्वाइन है। ठीक है, अगर आप, हम टेबल वैसे क्रिएट करेंगे, टेबल में डेटा एंट्री करेंगे जब हम डेटा डिक्शनरी में काम करेंगे। लेकिन ये एक ऑलरेडी एक डेमो प्रोग्राम है जो हर एसएपी सिस्टम के अंदर होता है। ये एक डेमो टेबल है विथ सम डमी डेटा इनसाइड। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कोड है SE11। ठीक है, आप टेबल वहां से एक्सेस कर सकते हो, टेबल का डेटा वहां से देख सकते हो। अगर आप प्रोग्राम में डबल क्लिक करोगे तो भी इसमें जा सकते हो। ठीक है, और जब हम यहाँ पे डेटा इनपुट करेंगे तो बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल जो हमने लिया है, वो वेरिएबल हम इसको पास करते हैं। इस वेरिएबल के बेसिस पे हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे इसके अंदर। ठीक है, एनीवेज नहीं जा रहा है।
क्वेरी में मिस्टेक है। I'll fix this. Anyways, so basically क्या हुआ, देखो, जब जब मैं यही वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, राइट, when I'm executing the program, you're getting this screen. ठीक है? So this is what we call this is a selection screen. ठीक है? ये selection screen जो है is going to your next step, reading the query. ठीक है? Now the query is, it is selecting from these two tables, S flight, S car, and S ये. There are three table joins. ठीक है? And whatever column that we are collecting here will be the structure of this output. ठीक है? अभी बस ओवरव्यू बता रहा, ये बेसिकली प्रोग्राम कैसे काम करता है वो देखो। ठीक है? अभी सब हम ये सब आएगा डेटा डिक्शनरी के अंदर, जब हम पढ़ने ये करने जाएंगे तब हमारा सेलेक्ट क्वेरी बहुत डिटेल में आएगा, और बहुत टाइप का सेलेक्ट क्वेरी होता है। ठीक है? तो ये तुम्हारा आउटपुट लाने के बाद, नाउ देयर इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग ब्रेक पॉइंट। एक तो तुमको स्लैश एच बताया था, एक यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारा सेशन ब्रेक पॉइंट हो गया, एंड द थर्ड वे इज दिस, यू कैन डायरेक्टली राइट ब्रेक पॉइंट। ठीक है? ये डीबगिंग के बारे में, डीबगिंग इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट योर इंटरव्यूअर में आस्क। ठीक है? क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद से तुमको इमीडिएटली पता नहीं होगा, या तुम उसको सीख नहीं सकते हो, तुमको एज पर द रिक्वायरमेंट उसको ढूंढना पड़ता है, और वो ढूंढने के लिए दीज आर द टेक्निक्स दैट यू यूज। ठीक है? तो ये सारे फंडामेंटल्स है। ठीक है? तो जब जब कभी भी तुमको कोई प्रोग्राम दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यही प्रोग्राम दिया, राइट, सो देयर इज वन थिंग इज, आइदर यू पहले तुम स्लैश एच कर लो और फिर इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है? फिर इसको ट्राई करो, अब एग्जीक्यूट करो। अभी डीबगिंग पहले से इसीलिए सिखा रहा हूँ, इसीलिए ताकि तुम हर प्रोग्राम को डीबग करना स्टार्ट करो। ठीक है? जब आपने अपने पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीबगिंग किया है? नहीं किया है? कभी जरूरत नहीं पड़ा? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? कभी एरर ही नहीं आया? डीबगिंग डीबगिंग किया है, लेकिन ऐसे नहीं किया। वो एसक्यूएल में सीधा एरर आ जाता है, तो एरर ढूंढने का और उधर। ओके, एंड व्हाट अबाउट डॉट नेट? डॉट नेट में सर किया है, लेकिन वो मतलब वो जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, वो किया है, ऐसा डीबगिंग नहीं किया, में रन भी किया स्टेप है। बाय स्टेप ही होता है। ये जो नहीं पर आप रन चार नहीं होता। बटन देख रहे हो ना, हाँ
ये वही डीबगिंग स्क्रीन है जो आपको आप बाकी में भी देखने को मिला होगा। जब आप ये पहला क्लिक करते हो ना, तो आप नेक्स्ट लाइन पे जाते हो। ठीक है, अगला लाइन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है ये उसके हिसाब से जाता है। ठीक है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो करके देखो क्या होता है। बेसिकली ये ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहा है। पहला वाला लाइन बाय लाइन जा रहा था, नेक्स्ट वाला ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहा है। देख रहे हो, राइट? अभी रिटर्न करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से, ये प्रीवियस प्रोग्राम पे चला गया। किया यूज? देखो ये ब्लॉक बाय ब्लॉक जा रहा है, ये आ गया। अभी हम फिर इसमें से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से आ गया ब्रेक ब्रेक पॉइंट पे। तो क्या हुआ अभी? पहले वो रिपोर्ट वाले प्रोग्राम में गया और इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए सारा माहौल बनाया। ठीक है, ये आप ये लाइन से आप डिक्लेयर करते हो तो आप एक टेबल का वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हो। मतलब ये क्या हुआ? इट्स अ डेटा टाइप टेबल। अभी एक नया टाइप डेटा टाइप आपको इसमें मिलेगा जो आपने कभी पाइथन में नहीं यूज किया होगा। इसमें एसएपी के अंदर में टेबल टाइप ही डेटा टाइप होता है। मतलब बेसिकली एक डेटा टाइप है जो पूरा टेबल ही डिफाइन कर देता है। उसको हम लोग इंटरनल टेबल बोलते हैं। ठीक है, वो एक डेटा टाइप होता है विच इज नॉट अ फिजिकल टेबल, इट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द फिजिकल टेबल। उसका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन तब तक रहेगा जब तक आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे है। जैसे आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, इट विल डिस्ट्रॉय द टेबल। ठीक है, तो उसमें गया, इट इज कीपिंग। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये एक इंटरनल टेबल है, राइट? आप उसके बाद फाइनली अभी क्या किया? लाइन बाय लाइन गया, ब्लॉक बाय ब्लॉक गया, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम गया, और ये कंप्लीट एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो चौथा वाला था, ये जो चौथा वाला है एग्जीक्यूट, ये ब्रेक पॉइंट टू ब्रेक पॉइंट जाता है। अगर मेरा एक ब्रेक पॉइंट यहाँ रहा, एक ब्रेक पॉइंट यहाँ रहा, तो ये जो है तुम्हारा ब्रेक पॉइंट से ब्रेक पॉइंट को जंप करेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी नोट करो। प्रोग्राम समझने का जरूरत नहीं है, डीबगर को समझो पहले। ठीक है, प्रोग्राम बाद में, प्रोग्राम हम और डिटेल में समझाएंगे क्योंकि इसमें इतना ही नहीं है, इससे बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो मेरा टुडे तो इसका ये आइडिया है हाउ डिबगर वर्क्स। ठीक है, इसमें इस पे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप ये आप प्रैक्टिस ही करोगे, इसमें ऐसा पढ़ने का कुछ नहीं है। जब मैं प्रोग्राम दूंगा या कोई भी प्रोग्राम उठाओगे तो उसको ऐसे एग्जीक्यूट करके देखो। ठीक है ना? यस सर। तो अभी आपको देखो आज के टॉपिक पे एक बार कवर करते हैं। आपको कुछ रीडिंग मटेरियल दिया है, उसको करो। ठीक है, आज के लिए इनफैक्ट पढ़ने के लिए आपके लिए काफ़ी कुछ है उसमें समझने के लिए। जो भी डाउट होगा हम कवर करेंगे उसको, और कल से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोसीड करेंगे विथ डेटा डिक्शनरी। ठीक है, और एसएपी का थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम पढ़ लेना, थोड़ा मैं दूंगा, तुमको बताऊंगा कि ये क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसीजर कैसे काम करता है, बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करता है। ठीक है, प्रोसेस के एसएपी के अंदर ऐसा क्या क्या मॉड्यूल्स है जो यूज करेंगे, क्योंकि एबैप सीख के कुछ नहीं होगा। एबैप किस चीज के साथ काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। सो देयर आर फंक्शन मॉड्यूल्स, MMSD, कुछ डिटेल मैंने आपको उस मटेरियल में दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो, मटेरियल उसमें है। ठीक है, उसका मैं टी कोड्स भी दिखाऊंगा आपको। देन वी विल स्टार्ट विद डेटा डिक्शनरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, ये लिंक को अपने हैंडी रखना, ज्यादा इधर उधर एक्सप्लोर मत करो, कंफ्यूजन होगा।
जैसे जैसे बताता जा रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन। और जो भी पॉइंट, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो, और जो कंफ्यूजन होगा तुरंत क्लियर करो। ठीक है? आप फाइल यस सर। बिल्डअप मत करते जाना कि बाद में इंटरव्यू के टाइम पे कर लेंगे, नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। कोई डाउट है? कुछ है? कोई ऐसा चीज रह गया जो तुमको तुम्हारे एक्सपेक्टेशन में था, नहीं कवर हुआ? बता दो। अब हमारे पास 5 मिनट टाइम है, हम उसको कवर करते हैं। कुछ ऐसा चीज है जो आपको, और आपको लग रहा था कि ये बता देता तो अच्छा रहता, या कुछ समथिंग लाइक दैट? लेट मी नो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर एक डाउट है, वो हम फंक्शनल भी सीखने वाले हैं या सिर्फ टेक्निकल? नहीं, फंक्शनल नहीं सीखने वाले, इन डेप्थ नहीं जाने वाले हैं, बट एक हाई लेवल आइडिया दूंगा। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि वी विल ट्राई टू, आई डोंट नो सर्वर में कितना डेटा है, अगर हमको कुछ ऐसा डेटा मिलता है वी विल ट्राई टू कवर मोर रिलेटेड टू बिजनेस में। ऐसे क्या होता है एसएपी के अंदर जो है ना, एक फ्लाइट डेमो करके एक डेटा होता है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल जब वेब ऐप सिखाते हैं, इनफैक्ट मैंने भी जब ये किया था, अब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जब देता हूँ तो मैं फ्लाइट डेटा पे देता हूँ, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करूंगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से एफआई से डेटा कैसे खींचते हैं, मटेरियल से डेटा कैसे खींचते हैं। उसमें मैं मटेरियल मैनेजमेंट नहीं सिखा सकता, वो अपने आप में बहुत बड़ा ये है, प्रोजेक्ट है, वो अलग मॉड्यूल है। वो सब फंक्शन मॉड्यूल्स में आता है, एंड यू यू नीड टू हैव लॉट ऑफ बिजनेस बैकग्राउंड फॉर दैट। आपको काम करने के बाद ही समझ में आएगा। तो वो नहीं कवर करेंगे। वी विल ट्राई टू पुल सम डेटा और टेक सम यूज केसेस फ्रॉम दैट एरिया, सो दैट जब आप बिजनेस पे लैंड, जब आप कहीं जॉब पे लैंड करोगे और आपको बोला जाएगा अच्छा ये मटेरियल मैनेजमेंट का ये रिपोर्ट निकाल करके दो, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये टेबल एक्सेस करना है, क्योंकि देयर आर स्टैंडर्ड टेबल्स। ठीक है? देयर आर स्टैंडर्ड टेबल्स। वो स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, इस टी कोड में जाएंगे, इस टेबल पे जाएंगे, तो हमको डेटा मिल जाएगा। और अगर मैं सब कुछ नहीं भी बताऊं तो ये बता दूंगा एटलीस्ट कि आप सर्च कैसे कर सकते हो। राइट? क्योंकि इतना सारा टेबल है कि आपको सब बता भी नहीं सकता, कोई नहीं बताता। लेकिन हाँ, एक कुछ मास्टर टेबल होता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप एमएम पे हो तो मारा पे जाएंगे। ठीक है? अगर आप फाइनेंस में हो तो बी सेग में जाएंगे, ऐसा करके कुछ कुछ टेबल्स होता है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो विल ट्राई टू पुल अप डेटा फ्रॉम दोज एरियाज, तो तुमको एक फंक्शन मॉड्यूल का भी एक आइडिया होता जाएगा कि कैसे कैसे होता है। ठीक है? ओके सर। ओके। और कुछ? एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो होप यू आर सेटिस्फाइड, यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, Yes. यस सर। यू हैव द टिप्स। वो जो टिप्स तुमको दिया है वो माइंड पे रखना, जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले से ध्यान रख करके चलो, लास्ट Sure. मोमेंट के लिए मत छोड़ देना उसको। यस। ठीक है? अभी से ही कोशिश करो, अभी से इस चीज पे इंटरव्यू, शुरू से इंटरव्यू के प्रोसेस पे लग जाओगे, तो एंड ऑफ द कोर्स आपके लिए प्रैक्टिस और क्रैक करना दोनों आसान होगा। यस सर।